Okay students, so now we are going to cover the remaining portion of session 6 and we take up time series methods now. See, time series is defined as a set of observations taken for any parameter or variable over time. More specifically, if we have taken observations on the demand or the sales of a product and then we have kept these sales values of the past periods in a chronological order, this is called time series. And generally, when we put the past sales values in a chronological order, we are able to see that there is some characteristic pattern hidden in that time series. The main assumption that we take in time series is that what has happened in the past with the sales of the product will continue to happen in the future also. And taking advantage of this, we will be able to anticipate or project or extrapolate or find out the future demand of a product. So for this reason, time series methods get this name extrapolative also. Now when you look at the time series of the past sales of any product, you generally see that there is some characteristic component or pattern hidden in it. For example, if you look at the weekly demand of haircut of customers at a local barber shop, you'll realize that the total load, the total customers which are coming to him remain about constant from week to week, but within a week the load or the customer rush is maximum on Sundays and it's minimum on Tuesdays. Similarly, you will see that the sale of firecrackers is mainly near Diwali. From year to year, in a particular period of the year, the sales would become maximum. Similarly, other type of patterns would be there. Like another example given over here is that if you look at the sales of raincoats in a year, more or less they would be constant in every month except for the rainy season when a surge would come. Right? So similar type of patterns can be noted and we can capture these patterns and then we can formulate a mathematical formula or a model and we can then use it to our advantage to anticipate or determine the future demand of a product. बच्चों 5 डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स या पैटर्न्स आपको किसी भी टाइम सीरीज में किसी भी प्रोडक्ट की पास्ट सेल्स में नजर आ सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम पैटर्न. Let us see one by one what each of these patterns mean or signify. हॉरिजॉन्टल पैटर्न. हॉरिजॉन्टल पैटर्न का मतलब है कि जब आप पास्ट सेल्स को देख रहे हो या जब आप किसी भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जब उस वेरिएबल की वैल्यूज को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है, आप देखते हो कि डेटा किसी मीन वैल्यू के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है. सो इफ दैट्स द केस, देन आपकी प्रोडक्ट की टाइम सीरीज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. एग्जाम्पल्स हमने दे रखी हैं कि इफ यू लुक एट द सेल्स और द डिमांड ऑफ कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इन a city from month to month during a year, you will realize that it's more or less constant. Students, यहाँ एक बात याद रखिए, टाइम सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोटल पीरियड को कैसे देख रहे हो और उसको फिर कैसे डिवाइड कर रहे हो. मैंने बार्बर वाली एग्जांपल दी, मैंने हफ्ते का टोटल पीरियड लिया और फिर उस हफ्ते के पीरियड को दिनों में तोड़ा. अगर मैं बार्बर की दुकान पर कस्टमर्स का रश देखूं साल में और हर महीने में उसको तोड़ूं साल को, तो हर महीने तो वो कांस्टेंट है. उसमें जो रियल कंपोनेंट मुझे नजर आया, जिसकी मैंने एडवांटेज ली, वो तब आया जब मैंने हफ्ते का टोटल पीरियड माना और उस हफ्ते को दिनों में तोड़कर मैं देख रहा हूं. सो टाइम सीरीज मेथड में आपको टाइम सीरीज में पास्ट सेल्स में क्या पैटर्न या कंपोनेंट्स नजर आते हैं डिपेंड करेगा आपने टोटल पीरियड क्या लिया है और उस टोटल पीरियड को आप किन छोटे पीरियड्स में तोड़कर देख रहे हो. डू यू गेट माई पॉइंट? अगर आप सपोज अम्ब्रेलाज वाली एग्जांपल में टोटल पीरियड ले लो पिछले 10 साल और उसको हर साल को तोड़ो, तो आप देखोगे हल्का सा हर साल सेल्स ऑफ अम्ब्रेला बढ़ी है.
पैटर्न अलग तरह का दिखेगा। लेकिन अगर आप पास्ट पीरियड लो सिर्फ 1 साल और 1 साल में आप उसको महीनों में तोड़ दो और महीने की सेल्स देखो तो आप कहोगे सर हर महीने में नियरली कांस्टेंट है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर महीने या सीजन आते हैं जब सर्ज आता है। तो द टाइप ऑफ पैटर्न हैज चेंज्ड। पहले केस में पैटर्न था ट्रेंड की लगातार सेल्स बढ़ रही है इन एवरी ईयर। व्हेन आई हैव लुक्ड बैक इनटू द डेटा ऑफ 10 इयर्स, हर साल सर सेल्स ऑफ अम्ब्रेला बढ़ी है। तो यहां पैटर्न क्या आ गया? ट्रेंड। लेकिन जब आप सिर्फ 1 साल का डेटा देख रहे हो और किस में देख रहे हो, उसको महीनों में तोड़कर, तो आप देखते हो सर हर महीने में नियरली सेम है, लेकिन जो रेनी सीजन वाले महीने हैं वहां बढ़ गया। तो अब जो कंपोनेंट नजर आ रहा है वो ट्रेंड नहीं है, अब वो बन गया सीजनल। सो टाइम सीरीज में आपको पैटर्न क्या नजर आता है डिपेंड करेगा आपने टोटल पीरियड क्या लिया है और उस टोटल पीरियड को किन छोटे पीरियड्स में आपने तोड़ा है। ओके, वी मूव टू द ट्रेंड पैटर्न। ट्रेंड पैटर्न का मतलब है कि जब आप पास्ट सेल्स को देखते हो तो हर पीरियड में लगातार इंक्रीज मिल रहा है डेटा में या डिक्रीज मिल रहा है या कोई और पैटर्न मिल रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियल मिल रहा है या पैराबोलिक मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन अनदर कंपोनेंट इज सीजनल पैटर्न which represents repeatable patterns of increases or decreases of demand depending upon time of a day. For example, अगर आप किसी आप ढाबे में चले जाएं, अगर आप एक दिन का पीरियड लें, एक दिन के पीरियड में आप पास्ट सेल्स को देखें, आप कहेंगे सर एक दिन के अंदर सारा दिन तो ऑलमोस्ट कस्टमर रश सिमिलर सा होता है, लेकिन सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक और रात को सर 7 से लेकर 10 बजे तक पीक आती है, तब रश होता है। और हर दिन सर यही चीज देखने को मिलती है। अगर आप नोट करते हो कि पास्ट सेल्स में रिपीटेबल पैटर्न्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज नजर आ रहे हैं, जैसे इन दिस एग्जांपल दैट आई हैव शोन ओवर हियर, इफ यू लुक एट द सेल्स ऑफ सम आइटम व्हिच हैज अ सीजनल कंपोनेंट, यू सी इन ईयर 1 फॉर दिस पीरियड देयर वाज अ सर्ज, एंड अगेन इन द नेक्स्ट ईयर in the same period for the same duration of time again there was a surge. So if this type of a repeatable pattern is there, then the component in the time series is seasonal pattern. Then we come to cyclic pattern. Cyclic pattern is very similar to seasonal pattern, but there are 2 points of difference. Point number 1 is कि the period over which these cyclic changes would come, यहां जो changes आ रही थी, जो period हमने लिया था वो हदोहद था 1 साल, लेकिन साइक्लिक पैटर्न में 1 साल तक के पीरियड पर चेंजेस नजर नहीं आती। यहां भी साइक्लिक पैटर्न में भी आपको इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नजर आएंगी सीजनल पैटर्न की तरह, लेकिन द पीरियड आफ्टर विच दिस टाइप ऑफ ए चेंज वुड कम is very large. You'll have to look into the data of decades, right? Similarly, not similarly, but dissimilarly. So first difference was कि यहाँ the periods over which this repetitive pattern comes, the period is small. Maximum repetition can be seen in a period of 1 year. But here, increase and decrease in the data would be seen, in the sales would be seen, but the period over which this repetitive pattern would be seen, the period would be very, very, जैसे आपको याद होगा इस समय हम कोरोना वायरस की दिक्कत से डील कर रहे हैं. लोग कहते हैं एग्जैक्टली 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उससे 100 साल पहले प्लेग आया था. So if you are trying to look into the time series of the casualties caused by some major disease which we could not contain, right, then we are seeing that after 100 years or so, this type of a thing comes, right? So in case of cyclic pattern, the periods over which increase and decrease in the data would be seen, those periods are very long. And secondly, कि जैसे कि सीजनल पैटर्न में जब भी सर्ज आता है, जब भी चेंज इंक्रीज डिक्रीज आता है, वो एक कांस्टेंट लेंथ का आता है और कांस्टेंट लेंथ का भी आता है और कांस्टेंट किसी पीरियड पर आता है. साइक्लिक पैटर्न में ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी. इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन वो किस समय पर हो वो भी डिसाइडेड नहीं होता और वो कितनी देर रहे ये भी डिसाइडेड नहीं होता. और बच्चों, आगे अगर कभी डिटेल में हमें डिस्कस करने का मौका मिला तो हम देखेंगे साइक्लिक पैटर्न, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में जो साइक्लिक पैटर्न दिखता है उसके पीछे दो कारण हैं. वन इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, द अदर रीजन इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स. उनके कॉम्बिनेशन से किसी भी प्रोडक्ट की पास्ट सेल्स में साइक्लिक पैटर्न देखने को मिलता है. द लास्ट पैटर्न वुड बी सीन इन एनी टाइम सीरीज. दिस इज कॉल्ड रैंडम पैटर्न. रैंडम पैटर्न मतलब जो चार आपने पहले पैटर्न्स देखे हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न का क्या मतलब होना चाहिए?
स्ट्रेट लाइन, बट आप ये जो इधर उधर भाग गए, डेविएट कर गए, ये क्यों कर गए? बिकॉज ऑफ रीजंस विच आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, रैंडम कॉजेस की वजह से। ट्रेंड इंक्रीजिंग वाला शुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन नहीं है, थोड़ी बहुत इधर उधर है। वाई? क्योंकि हर टाइम सीरीज में कुछ रैंडम कंपोनेंट होगा। सो द लास्ट कंपोनेंट विच इज सीन and which is seen in all time series is the random pattern. And बच्चों माइंड इट नाउ कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की टाइम सीरीज देखेंगे आपको 2 पैटर्न्स इन 5 पैटर्न में से नजर आने ही आने हैं। रैंडम पैटर्न इज इनएविटेबल, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक और कोई पैटर्न नजर आना है। तो हमारा जो टाइम सीरीज मेथड होगा वो डिपेंड करेगा कि रैंडम पैटर्न को छोड़कर ये जो 4 पैटर्न्स हैं इनमें से किसी एक पैटर्न ने आना है प्रोमिनेंटली किसी भी टाइम सीरीज में। वो हमने देख लेना कि कौन सा इन चारों में से कौन सा फैक्टर हमारी टाइम सीरीज में है, और उस फैक्टर के लिए जो टाइम सीरीज मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो यूज कर हम डिमांड टाइम सीरीज डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे किसी भी गिवन प्रोडक्ट के लिए। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सेशन 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।